Hello and welcome once again to my channel. And I was writing an essay from the 2025 UPSC mains essay paper, and the title was "The Supreme Art of War is to Subdue the Enemy Without Fighting." And today I am going to write the conclusion part of this essay. तो मैं एक essay लिख रहा था, तो उसका आज जो है conclusion part में লিখনে वाला हूँ। তো বাংলায় যেটাকে বলা হয় উপসংহার। এর বিষয় যেটা ছিল, অর্থাৎ বিনা যুদ্ধে শত্রুকে পরাস্ত করার যে কৌশল, সেই বিষয়ে আমি প্রবন্ধটি আমি লিখছিলাম। তো মোটামুটি 7টা পার্ট আমি আপলোড করেছি অলরেডি। তো আজকে তার অন্তিম পর্ব। পারিবারিক সমস্যা, বিষয় সম্পত্তিগত বিবাদ, শত্রুতা, মারদাঙ্গা, খুনোখুনি, চুরি ডাকাতি ইত্যাদির প্রভাব থেকে যাতে মানুষ নিজের হাতে আইন না তুলে নেয়, তার জন্য থাকে বিচার ব্যবস্থা। ফ্যামিলি ফিউড, প্রপার্টি ডিসপিউট, এনমিটি, ভায়োলেন্স, মার্ডার্স, রবারি পুশ কমন পিপল টু টেক লজ টু দেয়ার ওন হ্যান্ডস। এ জুডিশিয়াল সিস্টেম ইজ প্রেজেন্ট দেয়ার टू गिव जस्टिस एंड रिस्ट्रेन कॉमन पीपल फ्रॉम टेकिंग लॉज टू देयर ओन हैंड्स। जो पारिवारिक समस्याएं हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड जो इशू है, एनिमिटी जो है यानी दुश्मनी जो है, मारपीट, मर्डर्स, तो ये सारे का जो प्रभाव है ये सब का प्रभाव से इंसान अपना हाथ में कानून को ना उठा ले, इसीलिए सोसाइटी में एक जुडिशियल सिस्टम का बंदोबस्त किया गया है, यानी न्याय देने का एक व्यवस्था किया गया है हमारी समाज में। এই বিচার ব্যবস্থা বিভিন্ন অসামাজিক কাজকর্মের জন্য শাস্তি দেয়। जुडिशियरी गिव्स पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल एक्टिविटीज इन ए सोसाइटी। तो जो विचार व्यवस्थाएं हैं, न्याय देने का जो व्यवस्था है, इसका काम है क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए सजा घोषित करना। এর মধ্যে লঘু অপরাধের জন্য আর্থিক জরিমানা থেকে শুরু করে জঘন্যতম অপরাধের জন্য সুদীর্ঘ কারাবাস থেকে মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে। ফর লিটল মিসচিভাস অ্যাক্ট দেয়ার ইজ এ প্রভিশন ফর ফিনান্সিয়াল পেনাল্টিজ অ্যান্ড ফর হেইনাস ক্রাইমস দেয়ার আর প্রভিশনস फॉर लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ पेनल्टीज टू। छोटा मोटा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए आर्थिक जुर्माना और हेनस क्राइम्स जो है, मतलब जघन्य अपराध जब बन जाती है, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट यानी लंबे समय तक जेल में रहना, और साथों साथ जो है सजाए मौत भी सुनाई जाती है बहुत सारे मामले में। উদাহরণস্বরূপ কয়েকদিন আগের তামিলনাড়ু হাইকোর্টের একটি রায়, যেখানে 9 জন পুলিশ কর্মীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ফর इंस्टेंसेस ए डिसीजन बाय द मद्रास हाई कोर्ट और तमिलनाडु हाई कोर्ट टू गिव डेथ पेनल्टीज टू 9 पुलिसमैन। कुछ दिन पहले हम सुने थे कि तमिलनाडु हाई कोर्ट का एक सिद्धांत था एक मामले के बारे में। 9 पुलिस वालों को वो लोग सजाए मौत सुनाए हैं। 9 पुलिस वाले को वो लोग डेथ पेनल्टीज, जो हाईएस्ट पेनल्टीज होती है, तो वो सुनाए गए हैं। कहाँ से? मद्रास हाई कोर्ट से। তাদের অপরাধ ছিল সেই করোনা লকডাউনের সময় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দোকান বন্ধ না করার অপরাধে মোবাইল ফোন সারাইয়ের দোকানের মালিক পিতাপুত্র দুজনকেই পুলিশি হেফাজতে নৃশংসভাবে পিটিয়ে হত্যা করা। Their offense was they allegedly killed a mobile shop owner father-son duo in police custody for a minor offense of not closing their shop within the given time in the lockdown period। 9 पुलिस वाले का जो अपराध था
कोरोना टाइम में जब लॉकडाउन चल रहा था तो उस टाइम में दुकान बंद करने का एक समय होती थी कि आप लोग 8 बजे या 9 बजे के अंदर दुकान बंद करना पड़ता था। उस टाइम में हम सभी को पता है। तो उस टाइम में कुछ देर होने के वजह से वो एक मोबाइल रिपेयरिंग दुकान के मालिक बाप बेटे दोनों ही थे। तो दोनों को ही वो 9 पुलिस वाले उठा के ले गए थाने में और वहाँ पे पीट कर उन लोगों को हत्या कर दी गई। মাদ্রাজ হাইকোর্ট এই ঘটনাকে বিরলের মধ্যে বিরলতম ঘোষণা করে এবং অভিযুক্ত 9 জন পুলিশ কর্মীকে ফাঁসির সাজা শোনায়। মাদ্রাজ হাইকোর্ট ডিক্লেয়ার্ড दिस एक्ट एज रेयरेस्ट ऑफ रेयर एंड रिवार्डेड डेथ पेनल्टीज टू द अक्यूज्ड ऑल द 9 पुलिसमैन। हाईकोर्ट से ये डिसीजन लिया गया कि ये जो मामला है ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है और वो 9 पुलिस वालों को सजाए मौत सुना दी गई हाईकोर्ट से। অর্থাৎ এই রায় সাধারণ মানুষের কাছে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এবং প্রমাণ করে যে নিরস্ত্র মানুষকে লঘু অপরাধে হত্যা করার আইন সাধারণ মানুষ থেকে পুলিশকর্মী সকলের ক্ষেত্রেই এক। দিস ডিসিশন সেটস অ্যান এক্সাম্পল অ্যান্ড প্রুভস দ্যাট দ্য পানিশমেন্ট ফর দ্য কিলিং অফ অ্যান আনআর্মড পার্সন ফর এ মাইनर ऑफेंस इज इक्वल टू ऑल फ्रॉम पुलिसमैन टू कॉमन पीपल। तो ये घटना साबित करती है कि छोटा मोटा अपराध के लिए किसी को हत्या कर देना और उसका जो सज़ा है वो सभी के लिए एक है, चाहे वो कोई पुलिस वाले हो चाहे वो कोई आम पब्लिक हो, ये मैटर नहीं करती है। सभी के लिए ये इसका जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट सभी के लिए एकदम इक्वल है। সমাজে যথাযথ বিচার প্রক্রিয়াও বিনা লড়াইয়ে শত্রুকে পরাস্ত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। সো ইট ক্যান বি আন্ডারস্টুড दैट ए फेयर जस्टिस कुड बी एन आर्ट ऑफ वेयर इन आवर सोसाइटी। तो ये पता चल रहा है कि एक जुडिशियल सिस्टम और फेयर जस्टिस जो है वो समाज का एक रणकौशल के रूप में उभर आती है और ये भी एक एनिमी को परास्त करने का एक वे बन जाती है। এই বিচার ব্যবস্থা না থাকলে সমাজে অপরাধ প্রবণতা আরও বাড়বে এবং তখন পেশি শক্তির আস্ফালন হয়ে উঠতে পারে সমাজের মূল ব্যাধি। ইফ জুডিশিয়ারি বিকামস ইনঅ্যাক্টিভ ইন এ সোসাইটি দেন মাসল পাওয়ার কুড টেক প্লেস एज ए मेजर थ्रेट और एज ए सोशल एविल। तो ये जुडिशियल सिस्टम अगर नहीं रहती है तो समाज में जो है जो लोगों के पास पावर ज़्यादा है तो उन्हीं लोगों का एक दबदबा बन जाएगा, यानी गुंडागर्दी जो है ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उन्हीं लोगों का दबदबा बन जाएगा समाज में, अगर ये प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम नहीं हो एक सोसाइटी में, तब ये सब होने का एक बहुत बड़ा संभावना बन जाती है। तो यही था कंक्लूजन पार्ट। दिस इज़ ऑल अबाउट द कंक्लूजन ऑफ द एसे। The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting। तो इसी के साथ ख़त्म कर रहा हूँ मैं ये वाला एसे। सो गुड बाय, सी यू सून।